Fine. So we had completed domicile last lecture. ये marriage वाला chapter है. We'll leave it for now. To the fifth chapter, intestate succession. Okay. इसमें भी only a part of it is there, but we'll start with this today. So chapter 5th, page number 23, intestate succession. Okay. Also, the first note itself says, this chapter does not apply to Hindus, Mohammedans, Buddhists, Sikhs और Jain. ठीक है, इन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता है. तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में only there are certain chapters which applies to Hindus and other religions. Otherwise, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में most of the part as it is written here does not apply to Hindu, Mohammedans, Buddhists, Sikh और Jain. मतलब ये जो यूरोपियन इंडियन क्रिश्चियंस हैं और यूरोपियंस हैं, बस इनको अप्लाई होता है. ठीक है, और ज्यूज और इनको अदर नॉट अप्लाई टू दीस कास्ट. ओनली अ फ्यू चैप्टर्स जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वो अप्लाई होगा सब, पर नॉट दिस चैप्टर. ओके. इंटेस्टेसी. A person is deemed to die intestate in respect of all property of which he has not made a testamentary disposition, which is capable of effect. ठीक है? Intestacy, again, a person is deemed to die intestate in respect of all the property which he has not made a testamentary disposition, which is capable of taking effect. यानी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है विच वुड शो कि उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है और किसको करनी है, दैट इज नॉट शोन. ठीक है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है जिससे कि वो बता सके कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्पोज हुई है या कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. सो नन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज बीन मेड. तो ऐसे बंदे का इट विल बी डीम्ड कि उसने he has died intestate. ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी कुछ भी उसने नहीं बनाया डॉक्यूमेंट. सो वी गो टू द इलस्ट्रेशन. A has left no will. He has died intestate in respect of the whole of his property. अगर A ने will नहीं बनाया है तो इट विल बी डीम्ड कि वो intestate मर गया है with respect to all his property. Okay. A has left a will, thereby he has appointed B as his executor, but the will contains no other provisions. A has died intestate in respect of the distribution of his property. ठीक है, will बनाया, he doesn't know how to make a will, so he has appointed an executor also. एक formality complete किया, पर आगे property भी लिखा कि मेरे पास ये property है, ये है, this and that, everything is there. But he has not written as to whom the property should be given. किसको देनी चाहिए, कैसे distribute होनी चाहिए. तो so that person has again died intestate in respect to distribution of his property. ठीक है. A has bequeathed his whole property for an illegal purpose. ठीक है, उसने जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी थी he has bequeathed for एक illegal purpose के लिए कि ये इसको स्मगलिंग में लगाओ और फिर और अदर यू नो एनी अदर सच पर्पसेस. सो A has died intestate in respect of the distribution of the property. तो अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का, इसको ऐसा ही माना जाएगा कि उसने नहीं किया है. सिंस उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाज फॉर इलीगल पर्पस, तो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज नॉट डन. All right. A has bequeathed rupees 1,000 to B and is 1,000 to the eldest son of C and has made no other bequest. Okay. So A has bequeathed rupees 1,000 to B and rupees 1,000 to the eldest son of C. ऐसा लिखा कि एक 1,000 B को जाएगा and the other to eldest son of C and has made no other bequest. और कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कुछ भी नहीं लिखा है. He dies leaving a sum of rupees 2,000. Okay, and no other property. C died before A. C जो भी उसका लड़का होगा और whoever he that person was,
वो ए के पहले ही गुजर गया एंड विदाउट एवर हैविंग एवर हैड अ सन, और उसको कोई भी बेटा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो दिस वाज एज्यूम्ड बाय दैट पर्सन कि इसको लड़का होगा तो उसके बड़े लड़के को 1000 रुपए मिलेंगे, पर उसको लड़का हुआ ही नहीं, वो ए के पहले ही गुजर गया, ठीक है। एंड ए हैज आल्सो नॉट मेड एनी अदर चेंजेस रिगार्डिंग दैट, वो 1000 देन वैसे ही रह जाएगा। ए हैज डाइड intestate in respect of the distribution of 1000 rupees, ठीक है। तो 1000 जो मेंशन्ड था कि बी को मिलेगा वो तो मिल जाएगा, पर 1000 जो उसने प्रिज्यूम किया था कि इसको लड़का होगा उसको मिलेगा, that amount will not be, yeah, sure. Ma'am, in the same example, अगर assuming A would have lived and A को son की जगह daughter होती, हाँ, then what is the distribution now? Because he has not mentioned that daughter. doesn't, no, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सन है कि डॉटर है। अच्छा, उसको अगर उसने बोला है कि एल्डेस्ट सन है और एल्डेस्ट सन नहीं हो के एल्डेस्ट डॉटर, यू मीन टू से दैट? नहीं, तो इट विल नॉट गो टू एल्डेस्ट डॉटर, क्योंकि उसमें मेंशन्ड है एल्डेस्ट सन। तो जैसा उधर है वैसे ही नाउ ए शुड हैव डन दिस, कि अगर उसको दिखा है कि डॉटर हो गई है और सी एज इट इज रिटन इन द प्रॉब्लम कि उसके पहले ही गुजर रहा है, ए शुड हैव मेड चेंजेस इन इट। नहीं लिखा है तो वो अगेन इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, एज इट इज रिटन इन द विल वैसे ही मिलता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल इंटेस्टेसी, यानी आधा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और आधा नहीं हुआ। सो दिस इज द केस ऑफ partial intestacy. From what is stated above, it will be seen that a person is deemed to have died intestate in two cases. Firstly, when he has not made a will at all, तब तो पक्का है कि he has died intestate, कि will ही नहीं बनाया है, okay. And the next is when he has made a will but the same is not effective in a legal sense, or if it does not cover the whole of his प्रॉपर्टी। तो नहीं बनाया है ये एक कैटेगरी है, और दूसरी है कि बनाया पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हुआ, इधर इट इज फॉर एन इलीगल पर्पस, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, एंड इधर ऐसा अज्यूम करके कि इसको लड़का होगा उसको लड़की होगी एंड उसको मिलेगा, एंड दैट दोस थिंग्स हैव नॉट हैपेंड, तो इसीलिए उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज पार्शियल इंटेस्टेसी. Intestacy is of two kinds, total and partial. Thus, if X makes no will at all, it will be case of total intestacy, पूरा property के लिए. But if he makes a will only as regards his property in Mumbai and makes no will with regards to property in Pune, एक property के लिए will में लिख दिया, he is not mentioned the other property in the will, तो ये partial intestacy हो जाएगी, ठीक है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में भी 2000 रुपीज था, ये बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर सक्सेशन. नाउ वी आर डूइंग ओनली इंटेस्टेट सक्सेशन. टेस्टामेंटरी सक्सेशन तो बाकी है, दैट इज अ बिग चैप्टर दैट विल कवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना समझना है कि कैसे बनाया और कैसे नहीं बनाया, व्हाट विल बी कंसिडर्ड नॉट. सो दिस इज ओनली इंटेस्टेट सक्सेशन. Thus, if X makes no will at all, it will be, I'm sorry, I've done this. ठीक है, X will then be deemed to have died intestate in respect of his property situated in Pune. यानी जो प्रॉपर्टी बच गई है उसके लिए फिर सक्सेशन एक्ट लागू होगा and it will be followed as per that act. ओके, और एक प्रॉपर्टी तो जैसा विल में लिखा हुआ है वैसे बंदे को डायरेक्टली मिल जाएगी. The case of intestates other than Parsis. Section 31 to 49 lays down certain rules for distribution of property of intestates other than Parsis. Parsis को छोड़ के. As seen above, this chapter also does not apply to Hindu, Mohammedans, Buddhists, Sikh, Jain. और ये particular chapter पारसी को भी और नहीं होगा. और as in this part of the chapter will also not apply to Parsi. Okay, so this is not very important, इसीलिए I will just do a part of it आपको समझने के लिए, then we'll jump.
Section 31 to 49 lays down certain rules for distribution of property. Hence, the following rules will apply to किसको किसको apply होगा? Indian Christians, Europeans, etc. बस इनको ही apply होगा. Where the intestate has left widow, only she takes everything. अगर ऐसा Indian Christian, ठीक है, अगर ये या यूरोपियन गुजर जाता है, उसकी सिर्फ विडो है, तो विडो विल टेक द whole property. Okay, the property of an intestate primarily devolves upon the wife or the husband or upon those who are kindred of the deceased in the following order and according to the rules. यानी अगर जो है पीछे तो वाइफ को मिल जाएगा, अगर हस्बैंड है पीछे जिंदा तो उसको मिल जाएगा, उन दोनों के बाद में जो उनके नेक्स्ट ऑफ रिलेटिव्स होंगे उनको मिलेगा. कैसे? इट इज स्टेटेड. It may be noted that under section 35, a husband surviving his wife has the same rights in respect of her property, as I just explained. If she dies intestate, as a widow has in respect of the husband's property, if he dies intestate, तो दोनों के लिए same rule apply होगा. Thus, if the deceased intestate is a female, in the rules that follow, the word widower is to be substituted in the place of widow. मतलब ये इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस दोनों के लिए विडो को जितने राइट्स है वैसे ही सेम राइट्स विडोअर को भी है. ठीक है, तो जहां जहां पे विडो लिखा है उसको चेंज करके विडोअर सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, विडो W and linear descendant LD. Widow takes 1/3 and linear descendant gets 2/3. W 1/3 and linear descendant उसके पीछे का is equal to 2/3 of the property. Widow and kindred but no linear descendants. Linear descendants नहीं है, पर सिर्फ widow है और kindred. Each takes half, तो दोनों आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Widow but no linear descendants. Widow है और linear descendants नहीं है. If the net value of the property is rupees 5,000 or less, widow takes the whole property. पहला राइट विडो का आता है, तो अगर प्रॉपर्टी 5,000 या उससे लेस है तो she will take the whole property. If the net value of the property exceeds 5,000, 5,000 से ज्यादा है, widow is entitled to rupees 5,000 thereof and has a charge upon the whole of such property for rupees 5,000 with interest thereon from the date of the death of the intestate at 4%. यानी 5,000 तो वो लेगी और उसके बाद she'll take a charge on the property and receive 4% interest on that property. The rest of the property is to be divided among the heirs referred to above, including the widow in the ratio. मतलब जो ऊपर काइंडर और लीनियर डिसेंडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी का उस तरीके से उसे मिल जाएगा. ठीक है, नो विडो, प्रॉपर्टी विल गो टू द इंटेस्टेट्स लीनियर डिसेंडेंट्स इन डिफॉल्ट टू हिज काइंडर, इन डिफॉल्ट ऑफ बोथ टू द गवर्नमेंट. यानी अगर विडो नहीं है तो उसके बाद उसके ब्लड रिलेटिव्स को पहले मिलेगा, वो भी नहीं है तो फिर उसके दूसरे रिलेटिव्स को मिलेगा, अगर वो भी नहीं है देन विल गो टू द गवर्नमेंट. ओके, अभी ये रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको अभी छोड़ते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. वी विल डायरेक्टली गो टू पेज नंबर 29, स्पेशल रूल्स फॉर पारसी इंटेस्टेट्स. अभी क्रिश्चियंस और उसका छोटा मोटा हिसाब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. नेक्स्ट इज दिस, अभी पारसी को लेके general principles relating to intestate succession among Parsis. Section 50. The word Parsi has not been defined in the Act. Under the Parsi Marriage and Divorce Act, the term refers to a Parsi Zoroastrian. तो जो Parsi Zoroastrian है, ये term उसको refer करेगा कि those people are Parsis. So the children of a Parsi father would be a Parsi. Father Parsi है तो चिल्ड्रन को पारसी कंसिडर करेंगे, इवन इफ देयर मदर इज अ नॉन पारसी. और अगर मम्मी नॉन पारसी है तो भी चलेगा, पर मम्मी नॉन पारसी है और मम्मी पारसी है और फादर नॉन पारसी तो उसको पारसी नहीं बोलेंगे. यानी फादर का होना जरूरी है.
ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज स्टेटेड हियर। और उसके ऊपर एक साइटेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ intercession among Parsis, there is no distinction between those who are actually born in the lifetime of the deceased and those who at the date of his death were only conceived in the womb। तो पारसीज में इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि जो बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका है और जो बच्चा जो लेडी ने सिर्फ कंसीव किया है एंड बच्चा इज स्टिल इन मदर्स वूम, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन अकॉर्डिंगली। बट हु हैव सब्सिक्वेंटली बीन बोर्न अलाइव, हाँ, पर कंडीशन है कि बच्चा अलाइव पैदा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अ पोस्टमस चाइल्ड इज टू बी deemed to be in existence provided he was conceived when succession opened and is then born alive। तो उसका कंडीशन ये है पोस्टमस चाइल्ड का, याद है आपको मैंने बताया था व्हाट इज पोस्टमस चाइल्ड, at least one answer। Father has died before birth but after conceivement। Yes, correct। I hope this is clear कि फादर गुजर जाने के बाद में बच्चा बॉर्न होता है तो ठीक है, सो दैट्स अ पोस्टमस चाइल्ड। तो इसमें वही है कि जब सक्सेशन ओपन हो रहा है तभी बच्चा इट शुड बी लाइक बच्चा तभी वूम्ब में होना चाहिए एंड लेटर ही शुड बी बोर्न अलाइव, तो वो सक्सेशन करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। अ लीनियर डिसेंडेंट ऑफ एन इंटेस्टेट हु हैज डाइड इन द लाइफटाइम ऑफ द इंटेस्टेट विदाउट लीविंग अ विडो और विडोअर और एनी लीनियर डिसेंडेंट्स लाइक चिल्ड्रन, ग्रैंडचिल्ड्रन, उसके जो भी व्हाट यू से वारिस है पीछे के, सो वो उनमें से भी कोई नहीं है, इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डिटरमाइनिंग सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेट। कि इंटेस्टेट के रहते ही गुजर गया था, उसको डेफिनेटली जब प्रॉपर्टी ओपन होगी तो उसमें कोई भी मतलब नहीं है। जैसे फादर है तो फादर के पहले ही उसका बेबी गुजर चुका है, तो जब सक्सेशन ओपन होगा तो डेफिनेटली वो सन या वो डॉटर का कुछ भी राइट यहाँ पे कुछ भी मायने नहीं रखेगा। दैट इज व्हाट इज स्टेटेड। वेयर अ विडो और अ विडोअर ऑफ एनी रिलेटिव ऑफ एन इंटेस्टेट हैज मैरिड अगेन इन द लाइफटाइम ऑफ द इंटेस्टेट, ही, शी और ही एज द केस में बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेट। ठीक है, तो जो भी विडोअर थे उसने अगर शादी वापस से तो फिर वो बंदे को या तो को शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी एंड इज डीम्ड नॉट टू बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द इंटेस्टेट डेथ। इन अदर वर्ड्स, अ रिलेटिव्स widow is disqualified from inheritance if she has married before the death of the intestate। यानी जैसे बेटे की विडो है, ठीक है, तो अगर फादर ने बोला कि ठीक है ये बहू को she will get this part of the property, पर फादर के लाइफ टाइम में ही उसकी बेटे की विडो ने दूसरी शादी कर ली, ओके, तो दूसरी शादी कर ली तो इसीलिए शी इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट सक्सेशन पार्ट, उसको अभी जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगी, ओके, शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटेंस। दिस डिस्क्वालिफिकेशन वुड आल्सो अप्लाई टू अ रिलेटिव्स विडोअर हु रीमैरिज। और सेम वैसा ही है कि विडोअर है अगर बंदा कि जैसे बेटी का हस्बैंड है, बेटी गुजर गई, विडोअर है, तो फादर ने बोला चलो इसको प्रॉपर्टी देंगे, बट इफ दैट फेलो मैरीज अगेन सो ही इज अगेन disqualified from be inheriting that father's property, okay। shares in case of Parsi, इसमें हम डायरेक्टली टेबल पे जाएंगे, ये रूल 1 रूल 2 ये है ना, इसमें अप्लाई करके ही लिखा हुआ है, सो विल डायरेक्टली गो हियर, ठीक है। सेक्शन 53 to 56, name of the heirs, any lineal descendant and the intestate's child has died in his lifetime। कोई भी लीनियर डिसेंडेंट की बच्चा या फिर उसका बच्चा somebody जो कि लाइफ टाइम में ही इंटेस्टेट के गुजर चुका है। If such a deceased child was a son, अगर वो deceased child जो लड़का था तो his, that is the deceased child's widow and children take equally as if he had died immediately after the intestate's death। तो उनका प्रॉपर्टी का जो डेवोल्यूशन है वो वैसे ही होगा जैसे कि लड़के को प्रॉपर्टी मिली हो, यानी उसकी विधवा को
और उसके बच्चों को इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो अगेन इफ इट्स अ फादर और उसका बेटा उसके गुजरने के पहले ही गुजर चुका है, तो कि उसकी जो बेटे को मिलने वाली थी वो उस विडो को मिलेगी और उसके बच्चों को इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इफ सच डिसीज चाइल्ड वाज अ डॉटर, अगर वो जो गुजर गई थी वो लड़की थी, देन her deceased child share is to be divided equally among her children. तो इसमें है कि उसके बच्चों को इक्वल शेयर में वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ओके। नो लीनियर डिसेंडेंट लाइक चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, तो जो सिंपली इमीडिएटली लीनियर डिसेंडेंट्स है वो नहीं है, चाइल्ड या ग्रैंड चिल्ड्रन बंदे को है ही नहीं। इफ द इंटेस्टेट लीव्स अ विडो और विडोवर बट नो विडो और विडोवर ऑफ अ लीनियर डिसेंडेंट, यानी जब बच्चे नहीं है तो उनकी विधवा और विडोवर का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। पर खुद की विडो है, यानी खुद की वाइफ है, वो विल डेफिनेटली बी अ विडो नेक्स्ट। द विडो टेक्स हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ द इंटेस्टेट लीव्स अ विडो और विडोवर एंड ऑल्सो अ विडो ऑफ अ लीनियर डिसेंडेंट, यानी खुद की वाइफ भी है के जाके जो विडो हो जाएगी और बच्चे की भी लड़के की भी वाइफ है who's already a widow, तो इसमें क्या हो जाएगा, his widow or her widower takes 1/3 and the widow or widower of any linear descendants takes another 1/3, यानी खुद की जो विडो है उसको 1/3 मिलेगा और बच्चे की विडो है उसको भी 1/3 मिलेगा। If the intestate leaves no widow or widower but one widow or widower of a linear descendant, यानी खुद की वाइफ पहले ही गुजर चुकी है, it is only the son's widow who is alive, तो she or he gets 1/3 of the property, तो 1/3 of the property उन लोगों को पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज, इफ द इंटेस्टेट लीव्स नो विडो और विडोवर बट मोर देन वन विडो और विडोवर ऑफ अ लीनियर डिसेंडेंट, यानी कि दो लड़के थे और दोनों की ही बहुएं विडो है, ठीक है। अगर ऐसा है तो 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, इसको कैरी करना आप लोग, इट्स ओनली 10 minutes remaining, 2/3 of the property is to be equally divided among all such widow और widowers, ठीक है। तो ये जो भी विडो विडोवर बच्चों के हैं, एक से ज्यादा है तो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का होगा, 2/3 हो जाएगा। After ascertaining the share as per clause A, B, C and D above, the residue is to be distributed among the relatives of the intestate in the order given in part 1 of the schedule 2 of the act, यानी पहला पोर्शन इनको मिल जाएगा एज इट इज स्टेटेड इन द टेबल, 1/3, 2/3 या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी। अभी जो प्रॉपर्टी बच गई उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द शेड्यूल, बाकी रिलेटिव्स को मिलेगा, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, द लाइन इज गिवन, कैसे कैसे होगा इट इज स्टेटेड देयर। इफ हाउएवर नो रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड अंडर क्लॉज ई अबव, द रेसिड्यू इज टू बी is also to be distributed under clause A to D in the same proportion, यानी कोई है ही नहीं दूसरा रिलेटिव, यानी माँ बाप बहन भाई, nobody else is alive, it is only जो ऊपर mentioned है ना विडोवर, यही लोग हैं, तो इनको ही अगेन वो बाकी की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ओके। Neither linear descendants nor widow, widower or of any linear descendant, यानी कोई भी नहीं, ठीक है। Next of kin in the order set out in part 2 of the schedule of the act take the whole property, यानी अपनी फैमिली का उसका कोई है ही नहीं, पारसी फेलो was alone but he definitely has next of kin, कोई भी cousins और दूर के रिलेटिव कुछ भी है तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी, ओके। No relative at all entitled to succeed under the above provisions, कि पूरी प्रॉपर्टी में मतलब कोई भी रिलेटिव कुछ भी नहीं है उसका, he was only person, तो the property is to be equally divided among those of the relatives of the intestate who are the nearest degree of kindred to him, यानी अगेन ऊपर का कुछ नहीं है तो जो भी रिलेटिव्स उसके सामने आएंगे उनको प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और इनमें से भी कोई नहीं आएगा तो देन इट विल गो टू द गवर्नमेंट, ओके। टेस्टामेंट्री सक्सेशन पे जाएंगे अभी, चैप्टर 6। दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो इसका लिस्ट कितना लंबा है, A to Z,
तो ये A to Z ये थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, पर मोस्ट ऑफ देम करना है और आपको समझना है। ये ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही हैं। फाइन, सो पे अटेंशन। दिस चैप्टर डील्स विद टेस्टामेंटरी सक्सेशन, दैट इज रूल्स व्हिच अप्लाई इन केसेस where a testator has left his or her will. Chapter 6 contains some of the most important provisions of the Act and is discussed under the following. तो ये बहुत लंबा लिस्ट है A to Z का, हम लोग एक एक करके इससे डील करेंगे। तो टेस्टामेंटरी सक्सेशन इज अगेन कि बंदे ने अगर बनाया है विल तो कैसे बनाया है एंड कैसे जाएगा उसका प्रॉपर्टी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। Introductory, section 57 and 58. Section 57 provides the provisions of that chapter which are set out in Schedule 3 of the Act, subject to restrictions and modifications. To all wills and codicils made by a Hindu, Buddhist, Sikh और Jain. अभी आप इसमें नोट करोगे कि ये चैप्टर इनको अप्लाई होता है। पहले वाला चैप्टर नहीं हो रहा था, ये वाला चैप्टर होता है। Within the province of Bengal, erstwhile province of Bengal, और within the cities of Madras और Bombay, जो पहले वाला बंगाल था उसमें से भी लोगों को अप्लाई ये होगा, बिकॉज मेनी ऑफ द wills are made क्वाइट पहले का, ठीक है, जो कि अभी डिस्कवर होंगे। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि ये दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू दोज पीपल हु आर इन पहले वाला बंगाल प्रोविंस। To all such wills and codicils made outside the above territories, provided that such will or codicils and respect of immovable properties situated within the territories mentioned in clause A above, ठीक है, जो कि wills बनाई गई है बाहर की टेरिटरी में पर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, एज इट इज स्टेटेड कि बंगाल जो पहले इंडिया में इंक्लूडेड था, अगर बिल वहां पे बैठ के बनाया गया था पर विच इज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी विच इज देयर इन इंडिया, तो उसको ये चैप्टर अप्लाई होगा, ठीक है। दिस एक्ट विल अप्लाई टू दैट विल। To all wills and codicils made by a Hindu, Buddhist, Sikh or Jain after 1st January 1927, 1927 के बाद से सारी विल इन लोगों की बनाई हुई अप्लाई होगी, provided that marriage would not revoke any such will or codicil. Section 15 then provides as follows. Chapter 6 does not apply to testamentary successions of Mohammedans. Mohammedans को ये अप्लाई अभी भी नहीं होगा, ओके। Chapter 6 applies to again वापस वही चीज लिखा हुआ है, does not however apply to wills made before 1st January 1866. इसके पहले की कोई भी विल होगी in any of the conditions कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं है, ये है, वो है, it will not apply, okay. Except as above, the chapter contains the law of India applicable all cases of testamentary succession. Will and codicils, ये मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन के पार्ट में समझा दिया था। विल एंड कोडिसिल्स तो वापस से एक्सप्लेन में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इफ एनीवन हैज अ डाउट प्रॉपर, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने काफी डिटेल में विल और कोडिसिल किया था इन डेफिनेशन। विल डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विल को नहीं समझा है तो वो अभी पूछेगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विल, विल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? फर्स्ट इज लीगल डिक्लेरेशन। द डॉक्यूमेंट purporting to be a will must be legal, that is in conformity with the provisions as regards execution and attestation as laid down in section 63 of the act. यानी legally वो बराबर होना चाहिए will, and must be made by a person competent to make it, यानी उस बंदे से बनाई जानी चाहिए जो कि विल बना सकता है। लीगली दैट पर्सन कैन मेक अ विल। अ माइनर इज लीगली इनकम्पिटेंट टू मेक अ विल एंड अ विल बाय अ माइनर इज नॉट अ लीगल डिक्लेरेशन। तो बनाने वाला बंदा विल को अगर माइनर है तो will cannot be a legal declaration. It will not be considered as a legal declaration. It may also be noted that mere use of the word will cannot make it a will, but it does not amount to a testamentary declaration disposing of the property. यानी will के हिसाब से आपने कुछ भी लिख दिया तो उसको will नहीं बोलेंगे,
कि जैसे आपने लिख दिया कि मेरा विल, दिस इज माई विल दैट दिस पर्सन शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द हाउस, तो ऐसा विल नहीं होता है। विल क्या होता है? विल इज कि आपका प्रॉपर्टी कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका मेंशन करना, ठीक है, किसको देना और किसको नहीं देना ये मेंशन्ड है अगर उसके अंदर, तो उसको विल बोलते हैं, ठीक है। सो विल डज नॉट रियली मीन विद द लिटरल वर्ड इच्छा, अपनी इच्छा से आप कुछ भी करो नहीं करो, बट उसको विल नहीं बोला जाएगा, ओके। द डिक्लेरेशन शुड रिलेट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द टेस्टेटर विच ही वांट्स टू डिस्पोज ऑफ, अपनी प्रॉपर्टी उसे कैसे डिस्पोज करनी है वो मेंशन्ड है, एज आई टोल्ड यू, उसी को बोलते हैं विल। But merely, if the declaration contains no reference of the disposal of the property, but merely appoints a manager to manage the property or gives merely an authority to his widow to adopt, it is not a will. तो अगर ऐसा भी किया, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, पर ये नहीं लिखा कि किसको कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, तो उसको विल नहीं बोलेंगे। बी पॉइंट का नेक्स्ट वाला, in one case a document was executed by a Hindu of advanced age. In this document he partitioned his property amongst his son and the document was called his will. Amongst others, his so called will contained the following clause: if I at any time come back from pilgrimage and find mismanagement or the character of anyone bad, then I shall have the power to cancel this will. It was held that the effect of this clause was to make the document a family arrangement and not a will. तो ऐसा लिखा गया है कि अभी ये प्रॉपर्टी का मैंने पार्टीशन कर दिया, इस भाग में ये रहेगा, इस भाग में वो रहेगी, यू नो, एंड थिंग्स लाइक दिस। अगर ऐसा मेंशन किया और उसने ये भी बोला कि मैं पिलग्रिमेज पे अभी जा रहा हूँ, वापस आने के बाद में मैंने मिसमैनेजमेंट देखा तो मैं वापस से ये विल को रिवोक कर दूंगा, और ऐसा कुछ। अनफॉर्चुनेटली ही हैड डाइड इन बिटवीन, तो उसको बोला गया कि दिस इज नॉट अ विल, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सिर्फ फैमिली अरेंजमेंट है कि कौन किधर रहेगा किधर नहीं रहेगा, ओनली दैट इज मेंशन। इसके नाम से प्रॉपर्टी चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, अनलेस दिस इज मेंशन्ड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ विल, ओके। Thirdly, the declaration as regards the disposal of the property of the testator must be intended to take effect after his death. यानी वही कि during the lifetime अगर arrangement कर रहा है तो that is not a will. It should be कि मेरे जाने के बाद, मेरे गुजर जाने के बाद में the sentence will be there stated in the will itself. Okay? तो उसमें intention ही रहता है कि मेरे जाने के बाद। If the declaration is not to that effect, or if the declaration seeks to effectuate the intention of the writer immediately, that is during his lifetime intervals, then it is not a will. यानी कि उसके रहते हुए अगर कुछ अरेंजमेंट की बात हो रही है उस लेटर में, तो उसको विल कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ये मेंशन्ड है कि मेरे जाने के बाद ये अरेंजमेंट होना चाहिए, तो फिर वो विल कंसिडर किया जाएगा। सो दीज थिंग्स आर नेसेसरी, ठीक है। रिवोकेबिलिटी, द एसेंस ऑफ एवरी विल इज दैट इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर, यानी टेस्टेटर जब तक जिंदा रहेगा अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी वो अपना विल चेंज कर सकता है और अपनी पुरानी विल को रिवोक कर सकता है उसकी मर्जी से, ठीक है। A will always operates from the date of the testator's death. कुछ डाउट है? What if the will is registered? Can he change it after that? Because it's compulsory to register the will, right? No, it's not. The will is not a compulsory registrable document, and it can be again changed at any time before his death. Even though it is registered, he wants to change it, he can. Okay. Okay. Yeah. A will always operates from the date of the testator's death and not from the date of its execution. In other words, a will always speak from the death of the testator. जिस दिन से वो गुजर जाता है उसके बाद से ही it will be deemed to take effect and not जब से उसका actual execution हो रहा है तब से,
ठीक है. During the testator's life, his will is always ambulatory, that is of an unsettled and fluctuating character. यानी जब तक वो जिंदा है तब तक उसका कैरेक्टर फ्लक्चुएटिंग होगा, like it can change at any time. This is made abundantly clear by section 62, which provides that a will is liable to be revoked or altered by its maker at any time when he is competent to dispose of his property by making a will. हाँ, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है जब तक वो पूरी हो रही है तब तक के लिए वो कभी भी उसे चेंज कर सकता है. जो भी बंदा उसको अटेस्ट कर रहा है ना, उसको भी उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि कल को अगर उसको एज ए विटनेस बुलाया और बोला कि इसके अंदर क्या लिखा था तुमको मालूम है, तो पर्सन विल से आई डोंट नो गुजराती, तो फिर वो हो जाएगा कि नहीं, फिर दैट पर्सन इज रॉन्ग इन अटेस्टिंग द विल. तो इसीलिए इट इज प्रेफर्ड कि वो स्टेट लैंग्वेज में है तब तक ठीक, अदरवाइज फाइंड अ पर्सन हु नोज दैट लैंग्वेज, हैज रेड इट वंस और उसके बाद उसने अटेस्ट किया है. ओके, so this is one part. However, the English courts have held that if a will is written in ink and the testator has made pencil alteration, it will be presumed that alterations were deliberately made. Whether a person can dispose of his entire property by will, unless the testator is a Muslim, he can make a will of his entire property or only with regard to some of his property. All property which he has not disposed of by will would devolve as per the rules of intestate succession. तो सारी प्रॉपर्टी सबको ही अपनी डिवॉल्व कर सकते हैं मुस्लिम्स को छोड़ के. Why? Because मुस्लिम्स के धर्म में ऐसा है that 1/3 of his property को चैरिटी में देना चाहिए. तो even though you give or you don't give, ये तुम्हारा फैसला है, पर एटलीस्ट उसको विल में तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो. So 1/3 portion of your property should be left apart from, मतलब विल में से छोड़ देना चाहिए. ठीक है. Stamp duty, no stamp duty is payable on wills and codicils, hence wills need not be written on stamped paper. तो विल को लेजर पेपर पे लिख लेते हैं हम, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो एज एन एडवोकेट, और अगर सादे पेपर पे कोई लिख रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है. ठीक है. स्पेसिमेन आपको देखने का है तो वो पिक्चर जाके देख लेने का फ्रॉम दी अपेंडिक्स ऑफ दिस बुक. ओके. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ विल. द एक्ट मेंशंस only 2 kinds of will, a privileged and an unprivileged will. ठीक है. इसको उसके अंदर फिर टाइप्स हैं उसके, so that will go through. These are dealt with section 65 and 66 as to be discussed. However, wills can be classified under the other categories and it can be said that there are 9 kinds of will. ठीक है. तो 9 तरीके के will है, kinds of will, इसमें सब कुछ आ जाए. पहला है privileged will and unprivileged, वो आगे के चैप्टर में डिस्कस्ड है, वो डिटेल में है, so we'll learn it there. Non-cooperative or oral will. An oral or non-cooperative will is one which has been declared by the person making it in the presence of witness. मतलब वो लोगों के लिए है जो कि लिख नहीं सकते, they are disabled, जिनका हाथ भी नहीं होगा और rather हाथ काम नहीं करता है, तो वो लोग orally will अपना बोलेंगे in the presence of witnesses. इसमें witnesses का रोल बहुत ही important है. ठीक है. The act does not provide for the making of such wills except in the case of soldiers, sailors and airmen, in which case the number of such witnesses has been specified and other conditions discussed later have been laid down. ठीक है. तो ये जो privileged persons होते हैं, privileged unprivileged का I will just tell you in short कि privileged people होते हैं, those are airmen, sailors, जो कि soldiers, जो कि अपनी जगह पे आके they cannot, it's not necessary that they should मतलब यहाँ पे आके अपने प्लेस पे आके वो लोग बिल बनाए, बिफोर एन एडवोकेट बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है. इन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि ये अपने वर्क प्लेस पे ही जहाँ पे भी हैं, इफ दे आर गोइंग ऑन अ वॉर, तो एक दिन पहले उन लोग ने अगर कॉल करके अपने एडवोकेट को बोला कि दिस हैज टू बी माय विल, एडवोकेट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज अ विटनेस, उसकी बोलने का जो स्टेटमेंट था दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, ही मेड इट अकॉर्डिंगली, so that will be considered as his last will. ठीक है. तो ये प्रिविलेज उनको दिया जाता है
जो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं, ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ की लाइफ अनसर्टन है। ठीक है। The burden of proof of establishing an oral will is naturally quite heavy, and such a person would have to prove the exact words of the testator. तो ये जिस बंदे को भी उन लोग ने अपना ओरल स्टेटमेंट दिया है, बर्डन उसके ऊपर आता है कि वो उस स्टेटमेंट को प्रूफ करे। होलोग्राफ विल, दिस इज अ विल रिटन इन टेस्टेटर्स ओन हैंड, खुद के हाथ से लिखा हुआ विल। Such a will included in the definition of an unprivileged will under the Act. तो ये privilege में नहीं जाएगा, unprivileged में जा रहा है। The fact that the testator has written the will in his own hand, writing would also go to show that he was fully aware and conscious of making such a will. तो वो अपने आप में ही बताता है, अगर उसकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, कि बनाते वक्त बंदे का पूरा होश आवाज था कि वो क्या लिख रहा है। ठीक है। If, however, the will is one which is written not by the testator but by a legatee who gets a substantial benefit under the will, this fact must arouse the suspicion to the court, which would be vigilant and zealous of ensuring that such a document does express the true will of the deceased. तो ये मैंने बोला था जैसे पहले भी कि अगर वो खुद नहीं लिख पा रहा है, इट्स नॉट एबल टू राइट, अनप्रिविलेज्ड विल है। ठीक है। ये सेलर और एयरमैन की विल नहीं है, नॉर्मल इंसान, पर अगर ज्यादा बूढ़ा है, नहीं लिख पा रहा है, किसी और ने उसकी तरफ से लिख दिया, पर वो बंदा भी कौन है, जिसको कि विल में से मेजॉरिटी शेयर मिल रहा है, तो कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन मार्क, ये सस्पिशन डेफिनेटली आएगा कि यू हैव रिटन इन योर ओन हैंड्स और खुद को ही ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी, ऐसा तो नहीं है। तो डेफिनेटली बर्डन ऑफ प्रूफ विल गो ऑन दैट पर्सन। तो इसलिए ऑलवेज भी बोलते हैं ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर वो खुद नहीं भी लिख सकता है बंदा, तो भी वो ऐसे किसी इंसान से लिखवाए जिसको कि प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलने वाला है, और मिलने भी वाला है तो इट्स अ वेरी छोटा अमाउंट, तो उसके ऊपर डेफिनेटली फिर कोई भी डाउट आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है।